हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एडमिशन नोटिस दैट इज़ रिलीज्ड बाय द रजुवास, दैट इज़ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा for the undergraduate degree program of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry for the year 2022. So without any further ado, let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिस की. So simply the applications are invited for the eligible candidates for the admissions in Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry degree program against the NRI and NRI sponsored quota seats. The candidate must fulfill the following criteria. The NRI candidates are such persons who do not reside in India and who are non-residents Indian. That means they are residing abroad, out of the country. The NRI, OCI or NRI sponsored candidates seeking admissions to undergraduate programs are not required to appear in NEET UG, Rajasthan Pre-Veterinary Entrance Test or any other entrance test for getting admission under Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry undergraduate degree program. Candidates must have passed 10+2 standards or equivalent level examination with a minimum of 50% marks in individual subjects of physics, chemistry, biology or biotechnology and English. The eligibility of qualification will be subject to verification of equivalence with the 10+2 examination of any recognized education board of India. The candidates must furnish the details of subjects studied, grades and percentage equivalent marks in the relevant columns of NRI or NRI sponsored application forms. Mere submission of the application does not guarantee admission to the program. Provide duly attested conversion formula of OGPA, OCPA to percentage. The eligible candidates are advised to fulfill the online application form that is available on the official website of the Rajuvas. सिंपली इस नोटिस में आपको दो चार चीज़ें ध्यान में रखनी है. अगर जो भी स्टूडेंट्स और जो भी एस्पिरेंट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स और एनआरआई कोटा की सीट्स में रजुवास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिंपली एनआरआई वो बच्चे होंगे जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं और उनका कोई ना कोई एंसेस्टर इंडिया में बिलोंग करता है. पहली बात, ठीक है. दूसरी बात ये हो गई कि जो भी बच्चे एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स या एनआरआई सीट्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को नीट यूजी, आरपीबीटी और कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है. उनके जो 12th के मार्क्स होने चाहिए कम से कम 50%, 50% होने चाहिए इन विच ऑफ द सब्जेक्ट्स, पीसीबी दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश. ठीक है. जो भी मार्क्स उनके 10+2 में होंगे इन अमंग 4 सब्जेक्ट्स, वो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से वेरीफाई करे जाएंगे. ठीक है. सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं, दे आर एडवाइज टू फुलफिल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. बट दिस इज़ नॉट सर्टेन कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा. ठीक है. इस नोटिस में आपको सिंपल ये बताया गया है. चलते हैं डिटेल नोटिस की तरफ. So कुछ instructions हैं that are provided in the detailed notification of this particular notice. So we will look after this. The candidate must ensure his or her eligibility from the information booklet before filling up the form. The candidate must submit the online application form after paying the prescribed fee of $100. All the necessary document must be scanned and uploaded with the online application. The candidate is required to present a hard copy of the submitted application form and the original certificates or testimonials at the time of the counseling. Latest passport size photograph duly signed by the candidate should be pasted in the space provided on the application form. This photograph should be similar in all respect as the candidate wishes to appear in the counseling. For example, if the candidate wishes to appear with the beard or turban or etc., the photograph should appear so. The application form must be completed and no column should be left blank. Right not applicable where no information is required to be given. Incomplete application form is liable to be rejected. Information at serial number 6 must be filled, otherwise the application form will not be considered. It is considered as incomplete and will be get rejected.
The self-attested copies of all the certificates from matriculation onwards and other supporting testimonials must be uploaded with the application form in the first instance. Requisite fee of $100 or equivalent in the Indian currency must be deposited while submitting the application form via online payment mode. The university may at his discretion cancel the admission of a candidate at the time it is found that the candidate obtained the admission by mispresentation, concealment of the facts, or the admission was made due to error, oversight, etc. The number of the seats for the NRI or the NRI sponsored quota, 5 seats of BBSc and AH degree course in each of the constituent college of Veterinary and Animal Sciences Bikaner, PGIVR Jaipur, College of Veterinary and Animal Sciences Navena Udaipur of Rajwas Bikaner will be filled under this particular quota. So simply इस पर्टिकुलर डिटेल नोटिफिकेशन में इन पॉइंट्स में आपको यही बताया गया है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जो भी डिटेल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है जस्ट फिल दैट डिटेल. ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं $100 और इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी में जो भी पैसे बनते हैं. ठीक है. टोटल 5 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है इन दीज डिफरेंट कॉलेजेस, कोवास बीकानेर, PGIVR जयपुर, कोवास नवेना एंड उदयपुर. ठीक है. साथ ही साथ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करेंगे उनकी ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ उनकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म की भी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए. एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप हार्ड कॉपी का प्रिंट लोगे तो देयर विल बी अ सेक्शन वेयर यू हैव टू पेस्ट दैट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ये फ़ोटोग्राफ वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिस प्रेजेंटेशन में आप अपने आप को एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में रिप्रेजेंट करोगे. इट मीन्स अगर आपने कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ लगाई है जहाँ पे आप स्पेक्ट्स पहनते हैं, साथ ही साथ आपकी टर्बन भी है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी बियर्ड भी है, सो आपको इसी लुक में टाइम ऑफ काउंसलिंग के दौरान प्रेजेंट होना है. ठीक है. और इफ़ द यूनिवर्सिटी फाउंड एनी काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और द कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करे और यूनिवर्सिटी को लगता है दिस इज़ नॉट अ ट्रू डॉक्यूमेंट, देन द यूनिवर्सिटी विल कैंसिल द एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट. ठीक है. यहाँ तक बात शायद क्लियर होगी. चलते हैं आगे. सो नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको बताई दी. 5 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द BBSc एंड AH डिग्री कोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कवास बीकानेर, PGIVR जयपुर, कोवास नवेना एंड उदयपुर. ठीक है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द NRI दैट आर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एंड NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. At least one of the parents of the student should be an NRI and shall ordinarily be residing abroad as an NRI. Basically, जो भी स्टूडेंट्स NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटा सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर द कॉलेजेस ऑफ रजुवास, उनके एटलीस्ट एक पेरेंट NRI होने चाहिए और ऑर्डिनरली रिसाइड करने चाहिए अब्रॉड, मतलब कि इंडिया से बाहर वो रहने चाहिए. ठीक है. कोई दूर किसी और देश में. ठीक है. पहली बात क्लियर है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. द पर्सन हु स्पॉन्सर्स ए स्टूडेंट फॉर द एडमिशन शुड बी एट ए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ द स्टूडेंट एंड शुड बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग अब्रॉड एज एन NRI. जो भी NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स पे अपने दावेदारी को पेश कर रहे हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं जो कि उनकी सीट को स्पॉन्सर करेंगे वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होने चाहिए. इसका मतलब क्या कि रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, दूर दराज के रिश्तेदारी नहीं चलेगी. रियल ब्रदर होने चाहिए, रियल सिस्टर होने चाहिए. आपका उनका फर्स्ट डिग्री रिलेशन होना चाहिए. और जो भी वो आपके रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, दे शुड ऑर्डिनरी रिसाइड्स अब्रॉड एज एन NRI. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इफ द स्टूडेंट इज टेकन एज अ वार्ड बाई सम अदर नियरेस्ट रिलेटिव, such students may also be considered for admission providing the guardian has bona fidely related the student as a ward. For this, the nearest relative of the candidate who should be ordinarily residing abroad as NRI can be considered. Real brother and sister of the father, it means real uncle, real aunt. Real brother and sister of the mother, it means real maternal uncle and real maternal aunt. Father and the mother of the father, it means grandfather and grandmother. Father and mother, it means maternal grandfather and maternal grandmother. First degree relatives, that are paternal and maternal cousins. ठीक है. मतलब अगर कोई रियल और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपके वहाँ बाहर अब्रॉड में नहीं रहते हैं किसी भी स्टूडेंट के, सो
ये जो 5 कैटेगरी बताई हैं मैंने आपको यहाँ पे, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर और फादर, मतलब रियल अंकल, रियल आंट, रियल मटर्नल अंकल, रियल आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, पैटर्नल एंड मटर्नल कजन्स। अगर इनमें से कोई बाहर रहता है और वो बोनाफाइड देते हैं कि हाँ इस बच्चे को मैं अपना वार्ड कंसिडर करता हूँ एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग हिज और हर सीट, सो ये रिलेटिव्स भी स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की एनआरआई सीट को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑल द एनआरआई कैंडिडेट शैल सबमिट ए प्रूफ बीइंग स्पॉन्सर एज एनआरआई in the form of the certificate issued by the Indian Embassy or Ministry of the External Affairs Government of India for this purpose. In the absence of that certificate, a duly notarized undertaking executed by the sponsor and notarized by the notary public of the foreign country where the sponsor resides being submitted. Basically, जो भी NRI कैंडिडेट्स रजुवास में BVSC एंड AH की सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट विल बी इशूड बाय द इंडियन एम्बेसी और द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेट दैट इज ड्यूली नोटराइज्ड अंडरटेकिंग एग्जीक्यूटेड बाय द स्पॉन्सर। मतलब स्पॉन्सर जो है एक नोटरी के कागज़ पे ये लिखेंगे कि हाँ मैं इस बच्चे की सीट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ एंड इट विल बी नोटराइज्ड बाय द नोटरी पब्लिक ऑफ दैट फॉरेन कंट्री जिसमें आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं आगे। एन एफिडेविट फ्रॉम द स्पॉन्सर दैट शी एंड ही लुक्स आफ्टर सच स्टूडेंट एंड विल स्पॉन्सर द एंटायर कोर्स फी ऑफ द कैंडिडेट। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स पे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास एक स्पॉन्सर एफिडेविट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर द एनआरआई एंड द एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा। नो रिजर्वेशन ऑफ एनी कैटेगरी विल बी अप्लाई ऑन एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉलेज। कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उन स्टूडेंट को। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट वहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर द एडमिशन अंडर द एनआरआई कोटा, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द एनआरआई विद द एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान बाई ओन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो भी स्टूडेंट्स एनआरआई कोटा पे सीट अपने एडमिशन को लेना चाहते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी अगर उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी राजस्थान में किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मिनिमम 5 साल के लिए रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द कंसिडरेशन प्रायोरिटी फॉर एनआरआई कोटा फॉर विच डॉक्यूमेंट टू द इफेक्ट ऑफ दिस क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द वार्ड ऑफ एनआरआई। बेसिकली आपको एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी देना होगा कि भाई हाँ हम इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंडियन पासपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉर द फर्स्टली अलॉटमेंट्स ऑफ द एनआरआई कोटा सीट्स शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स हैविंग द एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान by parents, grandparents resided in the state of Rajasthan for at least a period of 5 years. Later on, the remaining vacant NRI seats will be allotted filled by the candidates of NRI belonging to the other states. Basically क्या है, मान लीजिए आपके पास A स्टूडेंट है और B स्टूडेंट है। ठीक है, A भी NRI सीट पे लेना चाहता है और B भी NRI सीट पे लेना चाहता है। ठीक है, अब इस बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो रियल रिलेटिव्स हैं वो स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मिनिमम 5 साल के लिए रहे होंगे, तो इस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर बी के पास ऐसा कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं होता है। जब सारी सीट्स ऐसे बच्चों से भर जाएंगी और जो बची हुई वैकेंट एनआरआई सीट्स होंगी देन द स्टूडेंट्स लाइक बी विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ओवरसीज citizens of India and the persons of Indian origin are allowed for the admission under the NRI quota. OCI कैटेगरी और PIO कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं फॉर द NRI कोटा। अनफिल्ड सीट्स ऑफ द NRI स्पॉन्सर्ड और NRI कोटा शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व पेमेंट सीट एंड शैल बी फिल्ड एज पर द यूनिवर्सिटी प्रोसीजर। और जो भी NRI की स्पॉन्सर्ड सीट्स और NRI कोटा की सीट्स खाली रह जाएंगी उन सीट्स पे एडमिशन होगा अंडर द पेमेंट कैटेगरी एज पर द प्रोसीजर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। सो फीस फॉर द एप्लीकेशन इज $100 और इक्विवेलेंट मनी इन द इंडियन करेंसी। सिक्योरिटी मनी विच इज़ रिफंडेबल इट इज़ नियर अबाउट $2,000 विच इज़ वन टाइम। ट्यूशन फी इज़ अबाउट $10,000 per year for the first 3 years which is non-refundable, and for the next, that is 4th year, the fees will be $15,000
विच इज़ नॉन रिफंडेबल एज फोर्थ ईयर इज ऑफ 1.5 ईयर. ठीक है. हॉस्टल फी विल बी $1,200 per year and for the fourth professional year it will be $1,800. आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर. आपको एडमिशन के टाइम पे $2,000 देने हैं जो कि रिफंडेबल होंगे. एप्लीकेशन फॉर्म के लिए $100 देने हैं. ठीक है. साथ ही साथ जो ट्यूशन फ़ी है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए तो है $10,000. ठीक है. फोर्थ ईयर के लिए है $15,000. क्योंकि $15,000 क्यों? क्योंकि फोर्थ ईयर जो होता है वो 1.5 ईयर का होता है और बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 ईयर के होते हैं. ठीक है. बाकी जो 1 साल की क्या होती है? इंटर्नशिप, दैट इज़ कंपलसरी इंटर्नशिप. हॉस्टल फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए तो आपकी लगेगी हॉस्टल फ़ी $1,200 और बाकी जो फोर्थ ईयर बचा उसके लिए लगेगी कितनी? $1,800. ठीक है. चलो, सो दिस वॉज अबाउट द So this was about the admission notice that is released by the Rajuvas for the admission under the NRI and the NRI sponsored quota seats. ठीक है. I hope the things are quite clear with all of you. किसी को शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी. मैंने काफ़ी easy language में इस particular notification को आपको समझा दिया है. Still you find any of the queries, you can refer with the detailed notification as well as you can leave your query in the comment section below and I will try to reply as soon as possible. I hope you all will get seats in the Rajuvas. It is one of the finest university in our country, as well as all the best to all the aspirants.